Okay, guys. So today I'm going to discuss about the method overloading concept, which is very important. Interview point of view also. Interview may ask first. We will try to finish this method overloading concept theoretically, and then after that I will implement the same thing. Okay, in Java applications. So interviewer may ask what is overloading in Java and why we need this overloading. So what is overloading means here you can say to the interviewer that sir it is overloading, it is ability to call more than one method with same name. Okay, so here developer can write the multiple method with same name in the same class. Okay, earlier before method overloading this was developer was not able to implement this concept because अगर आपको कोई मेथड्स लिखना पड़ रहा था तो अलग अलग मेथड नाम से हमें लिखना पड़ता, जैसे एक ऑपरेशन के लिए एक मेथड, दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरा मेथड, तीसरे ऑपरेशन के लिए तीसरा मेथड। इवन द रिले ऑपरेशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मान के चलो कैलकुलेटर एक क्लास है, उसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो बाई आई वांट टू परफॉर्म द एडिशन विथ टू आर्गुमेंट, sometime I want to perform the addition with three argument, sometime I want to perform the addition with four argument. ओके, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड अलग अलग नाम से लिखना पड़ रहा था, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, क्योंकि उसको मल्टीपल मेथड्स का नाम रिमेंबर करना पड़ रहा था। ठीक है, जो काफ़ी डिफिकल्ट है। आप एक ऑपरेशंस को अगर मल्टीपल वे में परफॉर्म करना चाहते हो सेम ऑपरेशन, तो अगर आप मल्टीपल मेथड्स वहाँ बनाने पड़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस गाइस। तो दैट्स वाई ये एक पेनफुल एरिया था डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, तो इस पेनफुल एरिया को ऊप्स कंसेप्ट में ये हटा दिया गया जावा एप्लीकेशंस के अंदर। मेथड ओवरलोडिंग यू कैन से where developer can write the multiple method with same name. Of course there are some protocol developer has to remember. So what are the protocol we have to follow here? First I will say here, let's say argument list must differ, method name must be same. Okay, in case of method overloading, method name must be same, argument list must differ, order of argument must differ, type of argument must differ, return type of argument may same or different. Okay, return type of the method may be same or different. So these are the protocol, these are the some principle we have to follow while implementing the method overloading concept. Okay, and with the help of method overloading we can achieve the static polymorphism, बिकॉज जो कुछ भी आप मेथड ओवरलोडिंग में जो भी कोड लिखते हो उसकी मेथड ओवरलोडिंग में, इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, द you can say the compiler know the invocation of the method, compiler know the method calling statement, compiler know the method calling statement, compiler decide these all method calling statement at the time of compilation. ठीक है, remember this. So if interviewer asking that what is the static polymorphism, you can say, sir, method overloading, with the help of method overloading we can achieve the static polymorphism. With the help of constructor overloading we can achieve the static polymorphism. And static polymorphism is the one concept where compiler know or compiler detect the method calling at compilation time. Compiler bind the method calling, okay, मेथड डेफिनेशन विद द मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कंपाइलर को कंपाइलेशन टाइम पर ही मालूम पड़ जाता है जो मेथड कॉल स्टेटमेंट है वो किस मेथड डेफिनेशन से बाइंड होगा। ये रिमेंबर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कंपाइलर इंटरव्यू वांट टू नो whether you are aware about this compilation binding, compile time binding or not. I will tell you the in separate session dynamic binding, that is related to the method overriding concept, so that I will take separately, but this time I want to cover only what method overloading concept. Okay, so static polymorphism or compile time polymorphism, compile time binding,
same. Remember here compiler know the compiler know the method calling statement. ओके तो यहाँ पर जो मेथड कॉलिंग है और जो मेथड डेफिनेशन से बाइंड किया जाएगा, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट को मेथड कॉलिंग मेथड डेफिनेशन के साथ बाइंड किया जाएगा। ये कंपाइलेशन टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मेथड स्टेटमेंट है, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट है किस मेथड डेफिनेशन के लिए। सो कंपाइलर विल डिसाइड एट कंपाइलेशन टाइम, दिस कॉल्ड द मेथड, दिस कॉल्ड द static polymorphism, compile time polymorphism, remember. So let's say I am creating one here calculator class. Now we will try to implement this concept method overloading calculator, okay, yeah, calculate class, okay. Now guys I am creating method here like int add int a comma int b and return a plus b, okay. Remember while overloading time we have to remember few things. It is ability, method overloading, it is ability to call more than one method with same name, ठीक है। तो आई एम क्रिएटिंग द मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम मेथड, ओके। सो ऐड मेथड है, क्या करना पड़ेगा हमें, आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट डिफर। तो आर्गुमेंट लिस्ट मतलब मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट है तो इसमें मैंने 3 आर्गुमेंट कर दिए, 3 आर्गुमेंट कर दिए। सी इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर b, तो आई एम इंटीजर here plus c, okay. Now अभी okay argument list must refer, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट 2 है, यहाँ पर 3 पैरामीटर हो गए। अब मैं लेट्स से फ्लोट वाला करता हूँ, तो यहाँ पर फ्लोट और ये लेट्स से बाय डिफॉल्ट डबल होता है, डबल ए डबल बी, डबल इज द वन डेटा टाइप, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप में भी सेम और डिफरेंट, यहाँ पर इंट है, यहाँ पर मैंने डबल किया बट मेथड नेम सेम है, आप देख सकते हो। ऐड ऐड ऐड, आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट डिफर, इंट 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट, नाउ 2 आर्गुमेंट है लेकिन कैसे डिफाइन करना है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट मैंने डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे डबल ए डबल बी कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, एआई सजेस्ट कर रहा था कोड, जो आपको हाईलाइट दिख रहा था ना कोड, वो एआई के द्वारा गिटहब कोपायलट मैंने अपने इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है। सेपरेट सेशन आई विल टेल यू हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस गिटहब कोपायलट एआई कंसेप्ट, हाउ वी कैन ऐड इनटू अवर जावा एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी मैं एक और मेथड लिखना चाहूंगा, तो एडिशन मेथड की मैंने मल्टीपल कॉपी डिफाइन की है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मैंने डबल ए कर दिया, यहाँ पर मैं करूंगा इंट ए कर दिया, सपोज इंट ए, ओके गॉट इट। अब इन द सेम वे 3 आर्गुमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द, यू कैन से गाइस, basically what I'm trying to do, your developer need to remember only one method name, add method, okay, and this method calling will be decided based on their type of argument, list of argument, number of argument, okay, and order of argument। तो देखो यहाँ पर डबल ए डबल बी है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डबल ए इंट बी कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो एक और कर सकते हो, इंट ए और डबल ए कर सकते हो, डबल बी कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, देखो ऑफ कोर्स इट इज 2 आर्गुमेंट, कैन यू सी हियर,
बट यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सॉरी टाइप एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप चाहो तो मैं एक और मेथड बना सकता हूँ यहाँ पर, देखो। अब मैं यहाँ करूँगा जैसे इंट, ये पहले कर दिया मैंने यहाँ पर, सी लेट्स से यहाँ पर है, ये मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये मैंने किया है यहाँ पर इंट डबल बी, ठीक है, देख सकते हो ना ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट। सो हाउ आई एम डिफरिंग दीज ऑल मेथड्स थी, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपी मैंने सेम मेथड की बना दी है। अब मैं इस मेथड को, दीज ऑल मेथड आर माय नॉन स्टैटिक मेथड, सो आई विल ट्राई टू कॉल दीज ऑल मेथड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा मैं, बिकॉज आई हैव नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, तो आप ये देखोगे कि कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया है, तो यहाँ पर कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन टाइम पर वो ऐड करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो आई एम क्रिएटिंग द दिस कैलकुलेट क्लास ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नाउ सी, चूंकि एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट प्रोपराइटर, तो विद इन द सेम पैकेज आई एम ट्राइंग टू कॉल दीज ऑल मेथड। सी अभी देखो ऐड हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। मैंने डाला यहाँ पर 20, 30, कैलकुलेट डॉट, देखो ये वाला हो गया। अब मैं ये वाला करूंगा, फिर देखो ये मेरा जो एआई है ऑटोमेटिक, देखो मेरे को बता रहा है डॉट इंट हो गया, डबल ए, डबल वाला हो गया, इंट वाला हो गया। अब इंट वाला ये ले लो, ठीक है, देखो मैंने किया, अब ये दिखा रहा है, ये इंट वाला, 3 इंट वाला हो गया। मतलब सेम मेथड यू आर कॉलिंग, इट इज एबिलिटी टू कॉल मोर देन वन मेथड विद सेम नेम, ध्यान रखना। डबल, डबल में हो गया, इंट, इंट में हो गया, डबल इंट में नहीं हुआ, डबल इंट में ले लो, डबल इंट में नहीं हुआ, ठीक है, ये ले लो, डबल इंट में हो गया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, देखो भाई अब यहाँ पर एक्चुअली ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये मेथड, दिस मेथड रिटर्निंग द रिटर्न टाइप में भी सेम और डिफरेंट केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, इन मेथड को मुझे डिस्प्ले करना है वैल्यू भाई, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब आप इसको भी समझ सकते हो मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में कि भाई ये जो है, ये सिस्टम इज माई क्लास, इट हैज वन स्टैटिक प्रॉपर्टी बिकॉज आउट इज माई प्रिंट स्ट्रीम टाइप है, और ये देख सकते हो प्रिंट स्ट्रीम टाइप है आउट, ठीक है, विच हैज द स्टैटिक प्रॉपर्टी, यू कैन सी, ओके। सिस्टम क्लास के अंदर ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम टाइप की आउट, आउट इज द टाइप ऑफ प्रिंट स्ट्रीम विच इज स्टैटिक प्रॉपर्टी, दैट्स वाई सिस्टम डॉट आउट हो रहा है। अब इसमें हम जाते हैं, ध्यान रखना ये प्रिंट एलन है, तो ये प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलन ओवरलोडेड मेथड है, कई सारे ओवरलोडेड मेथड हैं, ध्यान रखना। प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलन मेथड इंट के लिए अलग है, स्ट्रिंग के अलग अलग है, यू नो, डबल के लिए अलग है, डबल डबल टाइप का कोई आर्गुमेंट पास करो प्रिंट एलन के अंदर, फ्लोट के लिए अलग है, ओके। ऑब्जेक्ट टाइप अगर है उसका अलग है। तो हियर वी डोंट नीड टू रिमेंबर मल्टीपल प्रिंट एलन मेथड, मतलब आप देख सकते हो रिमेंबर द प्रिंट एलन मेथड नेम, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई स्ट्रिंग के लिए प्रिंट स्ट्रिंग हो जाता, इंट टाइप वैल्यू के लिए, इंट टाइप वेरिएबल के लिए प्रिंट वेरिएबल, प्रिंट इंट हो जाता, फ्लोट टाइप के लिए प्रिंट फ्लोट करना पड़ता, हमें मल्टीपल नेम हमें यू नो रिमेंबर करने पड़ते।
अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं होता ना मेथड ओवरलोडिंग, तो ये प्रॉब्लम हमें आती। मल्टीपल मेथड्स करते हैं हम, ऑफकोर्स यहाँ पे भी मल्टीपल मेथड कर रहे हैं हम डिफाइन अलग अलग डेटा टाइप के लिए, बट यहाँ पर एडवांटेज ये है कि विथ सेम नेम के साथ यूज हो रहा है, मेथड नेम सेम है। जैसे आप देखोगे प्रिंट एलन, ये जो है डिस्प्ले, ये देखो आप देखोगे ये कैलकुलेट डॉट एड मेथड है, ये इंट भी रिटर्न कर रहा है, डबल भी कर रहा है, ठीक है, फ्लोट भी कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रिंट एलन डबल के लिए प्रिंट डबल कर रहा हूं मैं, प्रिंट फ्लोट के लिए प्रिंट फ्लोट कर रहा हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग के लिए डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग टाइप का मेथड में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ही मेथड नेम है प्रिंट एलन, जो अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट के हिसाब से ये डिस्प्ले कर रहा है। सेम मेथड नेम वी आर यूजिंग हियर, प्रिंट एलन ओनली, which is useful to display the double type value, float type value, string type value, object type value, ठीक है, हर टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। सो यहाँ पर println मेथड ओवरलोडेड है, ठीक है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये देखो ये मैंने बना दी, देखो आप देखोगे, ठीक है, ये देखो मेरे गिटहब ने सजेशन दे दिया था, मैंने कर लिया, ये देखो, ठीक है, सजेशन दिया मैंने ऐड कर लिया। अब ये आप देखो भाई, मल्टीपल टाइप वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो सकती हैं, मल्टीपल टाइप वैल्यू रिटर्न हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर डबल होगी, यहाँ पर डबल होगा, यहाँ पर डबल होगी रिटर्न। तो ये एक ही मेथड, देखो आप मेथड हो रहे हैं, और द सेम मेथड यू कैन से ऐड मेथड सी इन अवर प्रोग्रामिंग आल्सो, वी हैव एडेड द ओनली वन मेथड ऐड, ओके, एड ऐड मेथड की मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, देखो आप, ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, आप देख सकते हो। See, I am executing, so मेन एडवांटेज क्या है यहाँ पर, इट इज एबिलिटी टू कॉल मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम, मोर देन वन मेथड, मोर देन वन मेथड है विथ सेम नेम के साथ हम कॉल कर रहे हैं, सेम नेम, ऐड 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 ऐड। और यहाँ पर जो मेथड कॉलिंग है, ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट कंपाइलर डिसाइड कर रहा है कि ये किस मेथड डेफिनेशन के साथ बाइंड रहेगा। तो ये मेथड डेफिनेशन है यहाँ पर, ओके। तो कंपाइलर नो एट कंपाइलेशन टाइम कि इनकी जो मेथड इन्वोकेशन है, जो मेथड इन्वोकिंग, okay, is deciding at compilation time. So deciding method invocation, call deciding at compilation time. This call compile time binding or compile time polymorphism, okay, remember this is, we have to remember, okay, got it, this we have to remember guys। तो ये जो आप देखोगे, ये जो है मेरी ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट है, इसको मैं बाइंड कर रहा हूं डबल डबल। देखो कैसे कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा, ये डबल डबल है, तो डबल डबल वाला कौन सा है, डबल डबल वाला ये वाला कॉल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कंपाइलर नो दिस बाइंडिंग, ओके, दिस कंपाइलर डिसाइड एट कंपाइलेशन टाइम, ठीक है। तो मेथड कॉलिंग जो मेथड डेफिनेशन के साथ बाइंड हो रहा है एट कंपाइलेशन टाइम पर, ठीक है।